منزلیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں منزلیں بدلتا میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں منزلیں بدلتا سارے یہ راستے نہیں منزلیں بدلتا ہے میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں منزلیں بدلتا ہے اداسیوں کے موسم یا خوف کے بادل گائیے گا اداسیوں کے موسم یا خوف کے بادل دوبارہ گائیے اداسیوں کے موسم یا خوف کے بادل جدھر جدھر سے رتے بدلتا ہے جدھر جدھر سے رتے میرے مسیح کا لہو میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں منزلیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں جو مانتے ہیں دل و جان سے بادشاہ اس کو جو مانتے ہیں دل و جان سے بادشاہ اس کو وہ ان کے دل نہیں فطرت بدلتا ہے وہ ان کے دل نہیں فطرت میرے مسیح کا لہو میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے یہ راستے منزلیں کبھی مزاج نہ بدلے میرے مسیحا ہاللویا کبھی مزاج نہ بدلے دوبارہ گائیں کبھی مزاج نہ بدلے سارے مل کر بولے گا کبھی مزاج نہ بدلے یہ وقت چار بہت کربٹیں بدلتا یہ وقت چار کربٹیں بدل میرے مسیح کا لہو میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے منزلیں بدلتا ہے یہ راستے نہیں
میں مر چکا ہوں مسیحا ہے زندہ مجھ میں میں مر چکا ہوں مسیحا ہے زندہ مجھ میں یہ محفلیں عادتیں بدلتا ہے یہ محفلیں عادتیں بدلتا ہے میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے منزلیں بدلتا ہے یہ راستے کبھی مزاج نہ بدلے میرے مسیحا کبھی مزاج نہ بدلے سارے بولیے دوبارہ سے کبھی مزاج نہ بدلے کبھی مزاج نہ بدلے یسوع مسیح کل اور آج کب تک یکساں ہے کبھی مزاج نہ بدلے یہ وقت چاہت کروٹیں بدلتا ہے یہ وقت چاہت میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے آج اوپر کر کے بولے گا یہ راستے منزلیں بدلتا ہے یہ راستے اپنی آنکھیں بند کریے گا اداسیوں کے ہو موسم یا خوف کے بادل اداسیوں کے ہو موسم اگر آپ ناامید ہیں آپ اداس ہیں پریشان ہیں بے چین ہیں آج کی عبادت آج کا دن آپ کی برکت اور آپ کی خوشی کا ہے اداسیوں کے ہو موسم یا خوف کے بادل اداسیوں کے ہو موسم بادل جدھر جدھر سے بھی گزرے رتے بدلتا ہے جدھر جدھر سے بھی رتے بدل ہاتھ اوپر کر کے بولے میرے مسیح کا لہو حالتیں بدلتا ہے یہ راستے منزلیں بدلتا ہے یہ راستے منزلیں بدلتا ہے منزلیں بدلتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا کے سب شکر گزاری کیجئے شکر گزاری کریں سب شکر گزاری کریں پلیز آج کا دن فرسٹ سنڈے خداون کی اس پاک عشاء کا دن ہے شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں We worship Lord worship Lord. Ribashampori kiti vishikoro.
Ishamara ka sandori bi, Ishamara ka samara ka thuru suturu, Yamara baba babandi, Ishalala bara bara ka santori. अपनी जुबानें खोलनी आपने, गैर जुबानों में दुआ करें। ईशंतु ईशम्मारा का संदूरी, खुदावन तेरी हजूरी की गहरी ताजगी जिंदगियों के लिए मांगता हूं। ताजगी 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 यीशु के नाम से। शंदोरी शबरी होशाना सुन तेरी कलीसिया दूर और नजदीक से तेरे घर में आई है। इस शदीद गर्मी के मौसम में तेरे लोग तेरे घर में तेरी आवाज तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं। एक एक जिंदगी रूहुल कुद्स की हजूरी से बरकत को लेकर जाए। कोई यहां से आज प्यासा भूखा तिश्ना न लौटे। आज का पैगाम तेरे लोगों की जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। सारी जगह पर कुछ तरह कंट्रोल चाहते हैं, इस सारे माहौल पर तेरा कुछ कंट्रोल चाहते हैं। तेरा दबदबा यीशु के नाम से जगह पर मांगते हैं। शरारत की सारी गंदी कुवतों को और तमाम शैतान के शिकारी परिंदों को जो कलाम का बीज चुगने के लिए तैयार हैं, तानते यीशु मसीह के नाम से यहां से निकल जाए, ताकि आज के कलाम को गहरी मट्टी मिले, ताकि वो फल 100 गुना लेकर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, हालेलुया। आज की किताब जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है निकालेंगे। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब और 37वीं आयत से 46वीं आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब और 37वीं आयत से 46वीं आयत तक। तिलावत समाप्त फरमाइए। ये बात फिरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मगर चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी माने दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कितान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तोक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उस सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा।
फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फनी रखा और उसने ऊन के पुजारी पोतीफर की बेटी आसनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे का एक बहुत जबरदस्त किरदार, बड़ी ही बाबरकत नौजवान यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा मॉडल रोल नमूना, एक ऐसा खूबसूरत हसीन नौजवान जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पुराने अहदनामा के अंदर जिसकी हयात जिंदगी के तल्लुक से तकरीबन पुराने अहदनामा में वो 13 से 14 चैप्टर्स जो है वो इसके बारे में लिखे गए हैं। पैदाइश की किताब के 37वें बाब से पैदाइश की किताब के 50वें बाब तक आप गौर करें कि कम से कम ये 13-14 चैप्टर बनते हैं जो मूसा ने यूसुफ के बारे में लिखे हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम यूसुफ की जिंदगी के बारे में गौर करते हैं तो बाइबल के माहिरीन बयान करते हैं कि यूसुफ और यीशु मसीह में तकरीबन 100 मुशाबतें जो है वो मिलती हैं। यानी जो कुछ भी यूसुफ के साथ हुआ, यूसुफ की जिंदगी के 100 ऐसे वाकयात हैं या 100 ऐसे उनकी अदाद और नेचर और काम हैं जो यीशु मसीह के साथ जो है वो मिलते हैं। उनकी मुशाबत जो है वो आपस में है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुराने अहदनामे का एक ऐसा किरदार जिसकी जिंदगी के 100 ऐसे अहम बातें जो क्या है जी यीशु मसीह के साथ मुशाबत रखती हैं। अब बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 37वें बाब को अगर आप खोलेंगे तो 37वें बाब से आप यूसुफ की जिंदगी का हाल शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि यूसुफ का लफ्जी मतलब होता है फलदार बेल या फलदार पौधा, ऐसा पौधा जो रोज पर रोज फलदार होता गया, ऐसा नौजवान शख्स जिसकी जिंदगी में आपको प्रॉस्पेरिटी ही नजर आएगी, जिसकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ना बढ़ना और बढ़ना नजर आएगा। लिखा है पैदाइश की किताब के 37वें बाब में लिखा है, पहली ऐसे पढ़े क्या लिखे है, और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। पहली बात, यूसुफ कौन था? बोलिएगा, क्या यूसुफ को बिजनेसमैन था? बल्कि यूसुफ के बाद लिखा है वो भेड़ और बकरियां क्या करते हैं। यूसुफ एक चरवाहा है, यूसुफ को भेड़ें चराने का बड़ा फन है। यूसुफ अपनी भेड़ों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा, भेड़ों का चरवाहा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है। यूसुफ चरवाहा है और यीशु मसीह भी चरवाहा है। और यूसुफ जानवरों को चारा देता है, जानवरों की फिक्र करता है। लेकिन यीशु मसीह वो चरवाहा है जो ना सिर्फ जानवरों बल्कि वो इंसानों की फिक्र भी करता है, उनकी जरूरतें भी पूरी करता है। फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पढ़िए आगे क्या लिखा है, ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। एक बात यहाँ पर लिखे कि यूसुफ अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर बाप को लगाता था, शिकायत करता था, अपने भाइयों के हर काम पर नजर रखता और फिर उस कामों की खबर किसको देता जाके। लेकिन आपका यीशु ऐसा नहीं है, वो आपके बुरे कामों की खबर बाप को नहीं देता, बल्कि वो शिकायत नहीं, वो शिफायत करता है। वो आपके बुरे कामों को देखकर बाप से आपकी शिफायत करता है। और ये यीशु मसीह की ज़ात में बहुत
चीज प्लस है जो हमारे हक में है और हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता। ओ जबरदस्त, यूसुफ अपने बाप का प्यारा है, यूसुफ लवली सन है, यूसुफ को उसका बाप दूसरे भाइयों की बनिस्बत ज्यादा प्यार करता है। और यीशु के बारे में तो यही लिखा हुआ ना, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। अगर यूसुफ अपने बाप का प्यारा है तो बाइबल कहती है यीशु मसीह भी अपने बाप का बहुत ही लाडला, मैं सो कहूंगा कि ये आसमान का नायाब कीमती प्रेशियस तोहफा है यीशु मसीह जो बाप ने इस दुनिया को दे दिया है। और फिर बाइबल बयान करती है बाप ने अपनी मोहब्बत के लिए एक बड़ा खास काम किया था। इसके साथ पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक भूकलमोन कबाब भी बनवा दी। अच्छा, इसने अपने बेटे के लिए एक खास कबाब बनवाया, इसका नाम था भूकलमोन कबाब, जिसके लिए बाइबल मुकद्दस में जो इंग्लिश तर्जुमा में लिखा हुआ है कोट ऑफ मैनी कलर्स, ऐसा कोट जिसमें बहुत सारे कलर वाला कोट है, एक ऐसी कबाब, एक ऐसा जुपा, एक ऐसा चोगा जो उसने अपने बेटे को बनवाया, वो कलरफुल था। इसका मतलब है आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, खुदा कलर्स में इंटरेस्ट रखता है। हैकल बनवाई, हैमा इज्तिमा बनवाया, हैकल में पत्थर लगवाए, आसमान की जो ब्यूटी है उसके बारे में गौर कर लिए। इस बेटे ने, इस बाप ने अपने बेटे को जो कोट बनवा के दिया वो कलरफुल कोट था, उसमें सफेद, सुर्ख, सब्जा, नीला और जामन कलर था। ये 6 से 7 कलर का कोट बाप ने बेटे को बनवा कर दिया था। और ये सारे कलर जो हैं ये कुछ नुमाइंदगी कर रहे थे। वाइट पाकीज़गी को पेश कर रहा था, सुर्ख रंग जो है ये मखलसी है, जामनी जो है ये शाही ताकत हिकमत है, सफेद पाकीज़गी, सब्जा जिंदगी और नीला आसमानी। अब गौर करें, बाप ने अपने बेटे को जो कोट बनाकर दिया था उसमें पाकीज़गी है, उसमें नजात है, उसमें बरकत है, हिकमत है, शाही ताकत है, जिंदगी आसमानी है। तो यीशु मसीह भी तो एक ऐसा ही आसमानी कोट लेकर आया आपके लिए, और उसमें जिंदगी भी थी, उसमें मखलसी भी थी, उसमें शाही ताकत भी थी, उसमें आपकी बरकत थी। यीशु मसीह भी ऐसी ही कलरफुल जिंदगी आपके लिए जमीन पर लेकर आया है। और बाइबल में लिखा हुआ है जिसके पास बेटा है उसमें, उसके पास जिंदगी है। और फिर पौलुस ने कहा हिकमत और मार्फत के सारे खजाने उसी में पोशीदा है। लेकिन हुआ क्या, इस कोट और सेकंड ख्वाबों की वजह से भाइयों को इससे हसद हो गया। पढ़िए क्या लिखा आगे जाके, और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे। क्या लिखा जी, बुग़्ज़ की वजह क्या हो गई, भाइयों को यूसुफ से क्यों हसद हो गया। बाप यूसुफ को क्या करता था, बाप की खास फेवर थी यूसुफ पर। और यही तो कुछ हुआ था यीशु के साथ, उसके भाई भी उससे हसद करते थे। उसके भाई से मुराद है यहूदी कौम, उसके लोग थे, उसके अपने थे। लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों से कबूल है। उसके बाद वो लिखे वो ख्वाब देखा करता था। कभी ख्वाब आ गया कि आसमान के सितारे, चांद, सितारे, सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। कभी ख्वाब देखा कि जमीन के पोले उठे हैं और मेरे पोले को सजदा कर रहे हैं। यानी ये प्रोफेसी कर रहा था कि एक दिन जो है मैं बहुत ही हाई पीक पर हो जाऊंगा और तुम सब मेरे नीचे हो जाओगे। यीशु ने भी यही कहा था, जरूर है इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए और जब मैं चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सब अपने पास खींच लूंगा। यीशु मसीह भी अपने जलाल की पेशनगोइयां करता था। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक दिन बाप ने यूसुफ को भाइयों के पास भेजा, जाओ
जरा भाइयों की खबर तो लो, क्या कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ खुदा ने किया, उसने भी अपना बेटा जमीन पर भेजा, जरा खबर तो ली जाए क्या कर रहे हैं। बाप को पसंद आया, अपने बेटे को भेजा ताकि अपने भाइयों की खबरगिरी करे। सेम खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा ताकि अपनों की खबर ले। लेकिन पता क्या लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे क्या लिखा है, यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, भाइयों ने कहा वो देखो आ रहा है ख्वाबों का देखने वाला, आओ इसे कत्ल कर दे, इसे मार दे। आया यीशु मसीह जमीन पर, अपनों में आया, अपनों में बैठा, लेकिन भाई अपनों ने तो उसे कबूल ही नहीं किया, अपनों ने उसे रद्द कर दिया है। और लिखा है कि इन भाइयों ने यूसुफ को घड़े में फेंक दिया। कहां? ये यीशु मसीह के मसलूब होने और यीशु के दफन होने को पेश कर रहे हैं। उसके भाइयों ने भी यीशु को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कहते हमें बराबर चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए। लेकिन फिर आगे क्योंकि मैं शार्ट जल्दी से आगे बढ़ने चलो, लिखा है इसके भाइयों ने यीशु को 30, ये सारा आगे हवाले पढ़ेगा, पूरा लिखा हुआ है। इसके भाइयों ने यीशु को इस्माइलियों के हाथ क्या कर दिया, बेच दिया। कितनों में? 30 चांदी के सिक्कों में। तो यीशु मसीह के बारे क्या लिखा है, लेके 30 दिनार ते सौदा कर बैठा, यार नु वेचे यार ते सौदा कर बैठा, लेके 30 दिनार। यहां पर भी यही हो रहा है। वो जो साथ रोटी खाता था, साथ उठता था, बैठता था, उसने अपने ही आका, अपने ही उस्ताद, अपने ही रबी के लिए उसने सौदा कर लिया। हम लोग अक्सर कहते हैं कि यीशु 30 रुपए में बिका। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं असल में हुआ क्या, यहूदा 30 रुपए में बिक गया था। यहूदा ने यीशु की कीमत नहीं लगाई, यहूदा की अपनी कीमत, उसकी औकात क्या है, उतरियां से लेके जाता है। आज भी कई लोग हैं वो यीशु मसीह को कोई जिंदगी में अहमियत नहीं देते, उनके लिए यीशु मसीह अहम नहीं है, उनके लिए शायद दुनिया की चीजें अहम है। फिर बाइबल मुकद्दस आगे हमें बयान करती है, जब उसको बेचा गया, फरोख्त कर दिया गया, तो पोतीफर के घर में वो आजमाइश में पड़ गया। ये सेम वही बात है, जब यीशु मसीह को भी आजमाया गया, वहां यूसुफ भी आजमाइश में कामयाब हो गया, यहां यीशु मसीह भी कामयाब हो गया। वहां आजमाइश औरत की थी, यहां आजमाइश शैतान कर रहा है। यूसुफ कामयाब हुआ, यीशु भी आजमाइश की हो गया जी, कामयाब हो गया। फिर बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह पर यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। उसकी बीवी कहती है मेरे साथ बदी करने की कोशिश की है, इल्जाम लगाया गया। यीशु मसीह पर भी इल्जाम लगाए गए, कहा कि ये कुफर बकता है, ये कैसर के मुखालिफ है, ये कहता है हैकल को ढा दो, मैं इसको क्या करूंगा 3 दिन में। झूठे इल्जाम यूसुफ पर लगाए गए, यीशु मसीह पर भी लगाए गए। फिर बाइबल कहती है यूसुफ जिस घर में भी जाता, बड़ा अच्छा नौकर था, बड़ा अच्छा खादिम था, हर काम बड़ी ईमानदारी से करता था। और यही सबूत है कि पोतीफर के घर में भी यूसुफ को प्रमोशन मिली। उसके जो आका था, उसने सारा काम यूसुफ के सुपुर्द कर दिया। यीशु मसीह भी बड़ा अच्छा खादिम है। एक बात करना चाहूंगा, लीडर ना बनो, खादम लीडर बनया करो। अगर आपने लीडर बनना है तो फिर आपके अंदर खादम नजर आना चाहिए। सिर्फ लेबर मत लगा लीजिए कि आई एम अ लीडर। यूसुफ को लीडर बनने से पहले एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ा, और प्रोसेस क्या था, वो जहां पर भी था, बाप के घर में है तो वहां पर भेड़ बकरी जाता है, पोतीफर घर में आया वहां पर भी खादम बन के काम किया, जेल में गया वहां भी खादम बन के काम किया। इससे पहले कि वजीर आजम बनता, उसको खादम के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कहना चाहूंगा इस सतह पर आने के लिए
आपको नीचे से आना पड़ेगा। आज का हर लीडर कोशिश करता है बस मनो फटाफट कुर्सी मिल जाए और मैं दिनों में पीठ पर चला जाऊं। एक प्रोसेस है। फिर बाइबल बयान करती है उसका मालिक उससे बड़ा खुश था। पोतीफर का मालिक क्या है, उससे बड़ा खुश था। मेरे यीशु से भी उसका रब बड़ा खुश था। मेरा आसमानी बाप वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं सवाल करना चाहूंगा, आपसे खुश है खुदा? अपने आप से सवाल करिए, मनो जवाब देना है। अपनी लाइफ, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत से के बारे में गौर कीजिए। क्या मेरी खिदमत से मेरा खुदा खुश है या मैंने बस लेबल लगवा लिया हुआ है कि आई एम अ पास्टर, आई एम अ मुबश्शिर, आई एम अ एल्डर, आई एम। क्या मैं अपना हक अदा करता हूं? चर्च में ओहदे लेना सब कुछ नहीं होता, उस खिदमत को सरंजाम देना बड़ा लाजमी है। और ये यूसुफ की क्वालिटी है। फिर लिखा है मुजरम ठहराया गया। और आपको पता है कैद में उसके साथ 2 मुजरम और भी थे जिनको ख्वाब आया। एक के ख्वाब का मतलब बताया कि तू बहाल हो जाएगा और दूसरे का मतलब क्या बताया कि तू फांसी। जब यीशु सलीब पर चढ़ा उसके साथ भी 2 लोग ही थे और दोनों के बारे क्या लिखा है? एक को कहता है तू आज ही मेरे साथ, एक को कहता है कि तू अपने मनसब में, अपने ओहदे में, जलाल में दाखिल हो जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा जहन्नम में चला गया। अब बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि उसने साकी से एक बात कही थी। आइए इस हवाले को मैं पढ़ने लगा हूं। जब उसने यूसुफ ने उसके ख्वाब का मतलब बताया ना, तो जरा पढ़ेंगे पैदाइश की किताब बाप नंबर 40। उसने कैद में उस साकी से जो मनसब पर बहाल होने वाला था उसको क्या कहा, जरा पढ़िएगा। 40वां बाप 13वीं पढ़िए, 13वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा और यूसुफ उसके ख्वाब का मतलब क्या कह रहा है? अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे क्या करेगा? सरफराज फरमाएगा। आगे? और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा और पहले की तरह जब तू उसका साकी था प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए, सुनिए, जब तू खुशहाल हो जाए, एक बड़ी प्यारी गल कही यूसुफ ने कैदखाने च साकी नूं। कहंदा है जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। हालेलुया। क्या कह रहा है? साकी तुझे तेरे ख्वाब का मतलब मैंने बता दिया। खुद बादशाह तुझे 3 दिन के बाद दोबारा मनसब पर बहाल करेगा। तो दोबारा से बादशाह को मैं पेश करना शुरू कर देगा, तो बादशाह का करीबी बनेगा। तो जब तू खुशहाल हो जाए तो मैनू की करना। मेरा यीशु भी कह रहा था अपने शागिर्दों से, अपने प्यारों से कि जब कभी तुम इकट्ठे हो जाओ तो मेरी याद में ये किया करना। जब तुम खुशहाल हो जाओ, जब तुम इकट्ठे हो जाओ, जब तुम्हें खुदा बरकत दे, नजात मिल जाए, रिहाई मिल जाए, तो फिर तुम क्या करना? मेरी यादगारी के लिए क्या करना? कईयों को शायरबानी बड़ी गैरहम लगती है, वो नहीं जानते शायरबानी च भी। उन्हें बस अपना काम, रोटी, पैसा, बिजनेस, घर बार चाहिए। वो कहते हैं कि संडे की करना है, संडे फिर दिहाड़ी ला लेना है, कोई ना कोई पैसा हाथ चढ़ जाएगा। आंदा है जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे क्या करना? याद करना। उसने कब आपसे कहा था? रोज महीने च एक बारी शायर बनी होंगी है और ओदे च भी सानू बड़ा ही स्यापा पिया होंदा है, हुण जाना ही पैना है। खुदावन ने आपको मुझे बरकत दी है इसलिए ताकि आप उसकी याद में इकट्ठे हों। लिखा है साकी मनसब पर बहाल हो गया, भूल गया,
लिखा है 22वीं आयत में, सुनिएगा, और उसने नानपस को फांसी दिलवाई जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया, आगे बल्कि उसे भूल गया। साकी भूल गया, साकी यूसुफ को, डोंट वरी, साकी भूला है, यूसुफ को खुदा नहीं भूला। खुदा को यूसुफ याद है, खुदा को यूसुफ की कुर्बानियां याद हैं, वफादारी याद है, उसकी पाकीज़गी याद है, उसकी खिदमत याद है, उसका प्यार याद है। लिखा है 2 साल तक साकी भूला रहा कि शायद उसके दिल में आती कि मुझे यूसुफ को बेगुनाह को छुड़ाना है। खुदा ने कहा साकी नहीं याद आया, खुदा ने खुद ही फिरौन को 2 ख्वाब दिखा दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस खुदा ना सानू भुले सते खैरा जे। आपको आपका भाई भूल जाए, बहन भूल जाए, शौहर भूल जाए, अजीज भूल जाए, डजंट मैटर, आपका खुदा आपको नहीं भूलेगा। कलाम में लिखा है कि मां अपने शीर खार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं अपने तालिबों को कभी नहीं भूलता। फिर लिखा है उसने यूसुफ को 2 ख्वाब दिखाए। क्या ख्वाब थे? एक बड़ी सेहतमंद 7 गायें और बड़ी दुबली पतली 7 गायें। तो दुबली पतली गायें जो हैं वो सेहतमंद 7 गायों को निगल गई, उठ गया। फिर ख्वाब आया 7 दानों से भरी भालें और 7 खाली। तो जो खाली भाले हैं वो भरे दानों वाली बालों को निगल गई। यूसुफ जाओ, फिरौन जागा, परेशान, डिस्टर्ब। ये क्या ख्वाब है? जादूगर बुलवाए। लिखा यहां पर 8वीं आयत, बाप नंबर 41 पढ़िए। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा। सुबह सुबह उठा, ख्वाब देखी, घबरा गया, परेशान हो गया। ये क्या ख्वाब है? यूसुफ कैद में था, फिरौन को ख्वाब आया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया। और उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। आगे क्या लिखा है? उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा, मेरी खताएं मुझे। आज तुम्हें याद आ गया। किधर याद आया ना? आपसे भूल गया है तू। खुदा ने फिरौन को 2 ख्वाब दिखाए, हैरान कुन ख्वाब। जैसे ही फिरौन ने ख्वाब बताए, क्लिक हुआ। कहता बादशाह माफी चाहता हूं, मनो मेरी खता याद आई है, मैं खुशहाल हो गया, मैं मनसब पर बहाल हो गया, मैं भूल गया अपने साथी को, मैं भूल गया अपने दोस्त को। बादशाह तेरे इस महल के तहखाने में एक कैदी है। जो खुदा की काया पलटदा है। राती कैदखाने च कैदी, तो लिखा है सुबह ख्वाब आया। बादशाह कहता है जाओ उस कैदी को कैदखाने से क्या करो, निकालो बाहर। दाढ़ी वधी दी, बाल बड़े हुए थे, कपड़े सारे कैदियों वाले। लिखा गया कलाम पाक में कि उसने कैदखाने से बाहर ने कैसे निकाला। पढ़िएगा आयत नंबर 14, क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैदखाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई। और लिखा है, हजामत बनवाई। मुंडे वड्डे वाल रखने छड़ दो, कोई बंदे पुत्र बन जाओ। लम्बे लम्बे वाल रखे, पीछे गोदियां बोदियां, पीछे रबड़ पा के जाते हो, नाप करके बार बार करके कुकड़ार को चंगे वाल रखो। यूसुफ की हजामत करवाई और लिखा है कपड़े पहनाकर किसके सामने पेश किया गया? उसको फिरौन के सामने। भाई बादशाह के सामने आने लगा।
آیا بادشاہ نے خواب بیان کیا اور یوسف اب اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. کہتا ہے بادشاہ سلامت، تیرے خواب کا مطلب کیا ہے؟ تیرے ملک میں 7 سال بہت زیادہ اناج پیدا ہوگا، لیکن اگلے نیکسٹ 7 سال تیرے ملک میں اتنا شدید قحط پڑے گا، کال پڑے گا، لوگ بھوکے مرنا شروع کر دیں گے. فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا کہ میری بادشاہی میں، میری سلطنت میں کال پڑنے والا ہے، میری عوام بھوکی مرنے والی ہے. پریشان ہو گیا. اب کہتا ہے کیا کیا جائے؟ بتاؤ ہمیں اس کا حل کیا کیا جائے؟ کوئی جادوگر کام آیا ہے؟ کوئی حکیم آیا کام؟ کون کام آیا ہے؟ کھوٹا سکا، جس کو کہتے ہیں قیدی ہے. اس نے خواب بتایا کہ بادشاہ پہلے 7 سال اتنا اناج جمع کر، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیج بوتا جا، زمینوں پر، نہروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، بیابان میں جہاں جہاں بیج بوتا جا. اور جب ساری فصل اکٹھی ہو جائے گی نا تو اگلے 7 سال کی کریں رام نہ کھائیں. ذرا پڑھیے گے کیا لکھا ہے 37 میں ایسے 7. یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. کنہوں نے پسند آئی؟ چامت ہے بات پسند، اچھا مشورہ دیا ہے. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ بہت بڑی بات کہہ دی فرعون نے. مصر کے دیوتاؤں کو ماننے والا، مصریوں کی دیویوں کی پوجا کرنے والا، وہ منن ہے کہ اس میں دیوتا کی، خدا کی روح کام کرتی ہے. ایسا آدمی ہمیں پوری سلطنت میں نہیں ملے گا. کیا لکھا ہے؟ فرعون نے یوسف سے کہا جو کچھ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا کہ نو، انہوں نے کہا تینوں سمجھ آ گئی ہے، تینوں خدا نے حالات نہ نپٹن دی سمجھ دیتی ہے. آج نہیں سمجھ لوگوں کو آ رہی. اگر آپ کی متوجہ ہوئی ہے نا کہ آپ کے حالات نہیں آپ کے قابو میں آ رہے تو خدا سے سمجھ مانگیے کیسے حالات پر قابو پاؤں. خدا اس بات کی سمجھ دی ہے، اس لیے تیری مانند دانش مند اور عقل مند کوئی نہیں. سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا. کوئی دن دے وچ راتی قیدی صبح گھر کا مختار بن رہا ہے. اور لکھا ہے میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تیری ساری رعایا تیرے حکم پر. کیا لکھا ہے؟ سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگوں برتر ہوں گا. فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور آگے بادشاہ نے اپنی سرکاری مہر والی انگوٹھی کیا کی یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، گلے میں ایک شاہی ہار پہنا دیا، اس کو شاہی پوشاک پہنا دی، اور پھر لکھا ہے اسے رتھ پر بٹھانے کا حکم دیا. اور پتہ کیا کہا کہ ہر بندہ اس کے سامنے کیا کرے گا؟ کیا لکھا جی؟ گھٹنے ٹیکے. ہر بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا. یہ ساری شان میرے یسوع کو نصیب ہوئی ہے. ہاللیلویا. حکمت تنائی کا منبع. جب اس خدا نے اپنا کام مکمل کیا، قربانی کفارہ، تو لکھا ہے باپ کو پسند آیا کہ وہ کیا کرے، اسے ساری معموری سے معمور کرے، اسے وہ نام بخشے جو کیا کرے سب ناموں سے. اب آئیں گے یوسف کو
फिरौन ने एक नाम दिया। क्या नाम है, जरा पढ़िएगा। आयत नंबर 45 क्या लिखा है जी? और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फनी रखा। पढ़िए, सिफनात फनीह रखा। सिफनात फनीह रखा। अब्रानी जुबान और मिस्री जुबान में इसके दो तर्जमे बनते हैं, और मैं जब इसको रिसर्च कर रहा था, कम और कम इसके 100 तर्जमे हैं मुख्तलिफ जुबानों में। मिस्री जुबान में इसका तर्जमा है नजात दहिंदा, मिस्र की सरजमीन का गवर्नर। और इब्रानी जुबान में इसका मतलब है खुदा बोलता है क्योंकि वो जिंदा है। फिरौन ने जब यूसुफ को देखा कि खुदा इसके साथ है, खुदा इसके अंदर से बोलता है, तो उसने यूसुफ को एक नाम दिया। और एक नाम क्या दिया? सिफनात फनीह, यानी दुनिया का नजात दहिंदा। और इसका एक तर्जमा यह है, वो जिसे जिंदगी कहा जाए, वो जो जिंदगी बख्शता है, जिंदगी का खाना देने वाला, जिंदों का खाना। कह लगा आज तो बात ਤੁਹਾਡਾ माई बाप कौन है? कौन है? आज के बाद पूरे मिस्र के लिए जिंदगी की रोटी यूसुफ होगा। लोग काल में इससे रोटी मांगेंगे आकर, लोग भूखे मर रहे होंगे, लेकिन यूसुफ उस उम्मीद में सबसे बढ़कर उत्तम उम्मीद लोगों के लिए होगा कि लोगों को खबर मिलेगी कि यूसुफ दे कोल रोटी है, यूसुफ के पास अनाज है। और लिखा उस दिन के बाद यूसुफ उस पूरे मिस्र की गवर्नमेंट के लिए रोटी मुहैया करने वाला बादशाह बन गया। अब गौर करिए, आज भी साडा मसला रोटी बन गया है। हर बंदे के लिए मुश्किल है, रोटी नहीं पूरी होने दी, भाई साहब रोटी नहीं पूरी होने दी। मैं आपको बताऊं आज एक बात, मेरे यीशु के अल्फाज सुनिएगा। आइए निकाली यूहन्ना की इंजील 6 बाब, जरा पढ़िएगा यीशु मसीह के बारे में। यहां यीशु ने एक मोज़ा किया है, लोगों को रोटियां खिलाई। लोग भूखे थे, बड़ी बड़ी दूर से लोग यीशु मसीह के पास आए थे, लोगों को खाना खिलाया, लोग बड़े खुश हो गए, कह लगे ए मिशन सही आ, रोटी भी मिल दी आ ते मच्छी भी मिल दी है। लोगों ने यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहा। लिखा है 6 बाब 15वीं आयत, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। 6 बाब 15वीं आयत। लोग यीशु को बादशाह क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि यीशु रोटी खिला रहे हैं। आप यीशु को क्यों मानते हैं? क्यों उसकी बंदगी करने से गर्मी च बैठे दे हो? रोटी हंसते, क्या ख्याल है? आइए यीशु का बयान सुनिएगा। आयत नंबर 27 पढ़ी, क्या लिखा है सुनिएगा। बड़ी खास बात यीशु ने कही, पढ़िए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। क्या लिखा है सुनिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जहनों में से आज। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। ऊंची ऊंची। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। ऊंची। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। फिर बोलो, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। फैक्ट्री से काम क्यों कर रहे हैं असी? है जी, रोटी वास्ते। मजदूरी क्यों करते हैं? रोटी के लिए। कारोबार क्यों कर रहे हैं? रोटी के लिए। लेकिन भाई यहां तो कुछ और ही बात कर दिया। फानी रोटी के लिए क्या लिखा है? मेहनत ना करो। याद रखिए, फानी रोटी आपको मार देगी। लिखा है, आगे पढ़िए, लिखा है
बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सुनिएगा ना, बड़े फख्र न किया जे, हमारे बाप दादा ने बियाबान में क्या खाया? मन खाया। बड़े खुश है, बड़े खुश है। अगर यीशु की उन्होंने जवाब देना पे, सुनो क्या लिखा है कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, है खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। क्या लिखा है? तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। और आपने कभी न्यूज सुनी है? शायद आपने सुनी, बंदा रोटी खांदा मर गया, रोटी मुंह से रह गई, रोटी सांस की नली में जाके फंस गई, बंदा मर गया। लोग रोटी के लिए परदेश काट रहे हैं, दिन रात मेहनत करके चर्च को भी छोड़ देते हैं, बस एक ही धुन लगी हुई है, रोटी रोटी रोटी। ये दुनियावी जिस्मानी रोटी आपको मार देगी। खाओ। अच्छा तो सुबह नाश्ता कौन कौन करके आया? भूख लगी जे फिर के नहीं? दोपहर लगेगी कि नहीं? दोपहर को भूख लगेगी, शाम को फिर लगेगी, कल फिर लगेगी। यीशु कहता है, जो रोटी मैं दूंगा वो कभी भूखा नहीं होगा। आपकी भूख नहीं खत्म हो सकती, ना इज्जत की भूख, ना दौलत की भूख, ना पैसे की भूख, ना रोटी की भूख। यीशु कहता है, जो मुझे एक बारी खा लेगा उसके अंदर से दौलत, रोटी, शोहरत, ये सारी भूखा मर जाएंगी। और वो जान जाएगा कि मुझे जिंदगी की रोटी मिली है। खुदावंद आपकी जरूरतें पूरी करता है। उसके नाम के अंदर लिखा हुआ है इमानुएल, खुदा हमारे साथ। खुदा के नाम में लिखा है यहोवा यरी, यानी यूसुफ का नाम तो बस एक कौम के लिए था, लेकिन यीशु ने यहां जो बात कही आयत नंबर 32, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को क्या करती है? जिंदगी बख्शती है। यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ लगी थी ना, भूखी थी। यीशु क्या लगा कि आपके पास क्या है? कहते हैं 5 रोटियां ते 2 मेरा ईमान है, ते तुहाड़ा भी ईमान होना चाहिए। अगर उस दिन उस बियाबान में रोटियां ना भी होती और मछलियां ना भी होती, फिर भी भीड़ शेर होकर जाती। क्यों जाती? लिखा है पैदाइश की किताब के पहले बाब में, खुदा ने पानी से कहा कि तू अंदर के जानवरों को पैदा कर। सो खुदा ने हुक्म दिया तो लिखा है समंदर में क्या पैदा हो गई? उन्हें मुंह कटिया ते समंदर च वड्डियां वड्डियां मछलियां आ गया। अगर उस दिन खुदा का बेटा कहता है आसमान मछलियां बरसाओ, रोटियां बरसाओ, तो खुदा उस दिन भी ऐसा ही कर सकता था, क्योंकि जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बुलाता है गोया पहले से मौजूद है। हालेलुया। अपने वसाइल पर क्यों नजर कर रहे हो? मनो एक शख्स ने सवाल किया, बल्कि साहब दे दिल च एक सवाल चलता रहता आजकल दुनिया में हर बंदे के अंदर एक सवाल है, सोशल मीडिया पर भी एक सवाल है। सुनिए वो सवाल क्या है, बड़ा
अच्छा सवाल आपके दिल में भी आता होगा, लोगों के भी आता होगा, कबीना के भी अंदर आता होगा। क्या सवाल? पादी साहब कलीसिया गरीब हो ही जाती है पई ते पादरी बोलो बोलो उची बोलो की जो ढिडो कड्डो लफ्ज कड्डो अंदरों लफ्ज जो प्यार है। पादी साहब ए की हिसाब है? मैं कहा जी की हिसाब है? पादरी की हो रहा है और कलीसिया ये गिरजा कौन बना रहे हैं? बोलो बोलो ये गिरजा किसने बनाया? शिलर किसने लगवाए? पखे किने लवाए? ए किने लवाई? ए किने लवाई? टायर किने लवाई? ए कितों आया है? साउंड कितों आया है? कौन मीर? बोल छड़ो। पादरी गरीब जे इनू अमीर तुसी करन दे हो। उन दसो तुसी क्यों नहीं मीर होंदे? आपके जहन में ना लोगों ने गलत नंबर पार छड़िया है, रॉन्ग नंबर पाया। केड़ा? वही जो नाल जो के सिर जो के बह जाते तो गल्लां कर दो, भाजी वेखो वो भी ले लई सू है भी ले लई सू, एवं जेन च कुट के बैठे थे। वेखो भाजी साडा कुछ बनना नहीं पिया, वो बनाई जान दिया है, वो तुसी बनान दे हो। आपकी बरकत का राज इसी में छुपा हुआ है। दिया करो तुम्हें भी। हम लोगों ने ना क्या किया हुआ है, हम परेशान हो गए हैं। आपका खुदा, मुझे एक बात याद आ गई, हर माँ पे अंजी करता है, मुझे पक्का पता है हर माँ पे अंजी करता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना तो वो आपके बच्चे को 1000 रुपए दे के जा रहा है। किन्ने? ये लो काका बेटा टॉफी खाना आ गया उधर, समझो काका छोटा जा कि ये काका ये आपने टॉफी खानी है और ठीक है खुदा आपको बरकत दे। उन्हें अम्मा लगी जे इधर पकड़ाओ दे दो, ठहर जो ठहर जो बेटा ये देखो ये 2 नोट हैं, ये देखो बेटा 2 नोट है, वो दे दो, वो गंदा नोट है, दे दो बेटा दे दो, ले लो बेटा। एंजी कर दो कि नहीं दसियो पक्की गल जे? अब बोलो कर दो कि नहीं? असि भी एंजी कर दे जे। आई भी काका इधर दो, इधर बेटा ये नहीं ये गंदा नोट है, ये छोटा ले लो। ऐवे साडी नेचर बड़ा लेकर क्या करते हैं, लेकिन मेरे खुदा की नेचर क्या है? वो छोटा आपसे लेगा और आपको बड़ा देगा। एला फड़, छोटा देगा तुझे बड़ा वापस करके दूंगा। ये खुदा की नेचर है। हालेलुया। वो कहेगा थोड़ियां मछलियां लाया, रोटियां थोड़ी लाया, इसको मल्टीप्लाई करके वापस करूंगा, खाएगा भी, शेर भी होगा और 12 टुकड़े फिर भी बचा दूंगा मैं। हालेलुया। दसो फिर एंदा खुदा कितने लभना सानू? आई तो बड़े चलाक, ये लो काका ये लो, ये खाओ जी गाओ, वो चला मार दो, मुझे मिल गया। ये तो कलाटी माँ पे होंगे ना। हालेलुया। आपका खुदा कसरत का खुदा है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के लिए जाएगा। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका खुदा कैसा खुदा जी? कसरत का खुदा है और वो आपके लिए सब कुछ करने पर कादर है। रोटी भी खिलाएगा, कपड़े भी देगा। इस बात की फिक्र ना करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा आसमानी बाप क्या है? असा कभी खुदा ने आजमाया नहीं जे, लेकिन एक गल मैं दस लगा तुहानू, खुदा दा कलाम की कहंदा। निकालिए खरूज की किताब, उसका बाप नंबर 16, बाप नंबर 16 पढ़ेंगे जी इस आयत को। आयत नंबर 3 से पढ़िए क्या लिखा है जरा। इसराइल की
बात सुनिएगा क्या कहते हैं। और बने इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल। सुनिएगा, खुदा इनको मिस्र से निकाल कर लाया तो शिकवा क्यों लगा, काश हम मिस्र में कहां बैठे हुए थे, किनके पास है, कहने नहीं हांडी नहीं घोड़ लिख गया है, केड़ी हांडी, वो केड़ा ऐसा मालिक है जरा 25 लाख बंदे गोश्त खवान दिया, ये फ्लैंटी मारन दे सन भाई, वो केड़ी जेल है जिथे छोटा गोश्त, उन्हें कहा ओ भाजी इतने ठीक है, भाजी की मिलन दिया गुलामी से, कहते ने हमें मिस्र में केड़ी हांडी, फिर कहते ने हमें मिस्र की मछली याद आती है जो मुफ्त खाते थे, ये भी चिट्टा झूठ। वो केड़ा बादशाह हैगा जेड़ा कहंदा मच्छी दियो जी गुलामां नूं मच्छी दियो, गुलामों को मिस्र के अंदर इस्राएलियों को 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से दे रहे थे, लेकिन बाहर आके की कहने ने हमें केड़ी हांडी, गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। हाँ असी भी हांडियां च खुब गए जी, यही टेंशन पई रहंदी ने कौन सी हांडी बनाए, कौन सी हांडी बनाए। आगे टोरो की लिखा है आयत नंबर 4, जरा सुनो ध्यान ना, आयत सुनना, बड़ी खास गल लिखी है, क्या लिखा है, तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, मैं आसमान से क्या करूंगा, तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। आगे, सो ये लोग निकल कर फक्त एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इसमें से इनकी आजमाइश करूंगा, और इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा। रोटी देके क्या करूंगा, बोलो बोलो, रोटी देके क्या करूंगा, रोटी देके क्या करूंगा। खुदा आपको रोटी देके आजमाता है, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। अब खुदा आजमाएगा ये कि 2 में से क्या देगा, 10 में से क्या देगा, और अगर आप अपनी रोटी आजमाइश में फेल हो गए ना, हाथ वापस खींच लेगा थोड़ा। जुमला ध्यान ना पढ़ना, रोटी देकर क्या करूंगा, बोलो बोलो की करूंगा, और ये खुदा की बात है। हम रोटी के पीछे भागे भागे जा रहे हैं, रोटी तो गली के कुत्तों को भी मिल जाती है, लेकिन उनको टुकड़े मिलते हैं, लेकिन अपनों को वो मेज की रोटी देता है। तेनों चंगिया चीजा नालो रजांदा, तेरी ओ खुशी क्या करेगा, खुदावन आपके लिए कसरत की बरकत रखे हुए हैं, बस उसकी बरकत को एंजॉय करो, रिसीव करने वाले बनिए। अगर आप मुतमिन है ना कि जहां पर हम हैं वहीं पर ठीक है, नहीं, खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े आगे काम रखे हैं, उसने ब्लेसिंग रखी है। जॉन वेस्ली कहता है मैं आसमान पर गया तो एक बड़ा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, कहता है मैंने पूछा खुदावंद क्या, खुदा ने कहा ये वो बरकतें हैं जो अभी तक ईमानदार ने मांगी ही नहीं। हम अभी भी बस इसी शोर में हैं, रोटी रोटी, और आपको पता है ये रोटी आपको मार देगी, पसीने की रोटी, गुनाह की रोटी, दुनिया की रोटी। लेकिन यीशु ने कहा आसमान से उतरी जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, और ये याद रखिए आपका खुदा आपसे थोड़ा मांगता है और बदले में आपको रिटर्न मल्टीप्लाई करके देता है। ये आपके खुदा की सिफ्त है, ये खुदा आपकी की नेचर है। सो खुदा मुझे और आपको बरकत दे और